بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ غلط اوزاروں کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس دنیا میں دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بھلا دیتی ہے۔ انسان یہ جانتا بھی ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ کرتے وقت یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اس دنیا میں زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی ختم کر دیتی ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ مایوسی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ یا اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرے کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت تم سے چھوٹ گئی۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ پیر کے دل میں نقش خداوندی ہوتا ہے اور مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ روزی سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑا ہو جاتا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، پر ہائے افسوس میں اسے بھی بھول جاتا ہوں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، اور تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے لیکن تو نہر کی تلاش میں ہے۔ سر ہو سجدے میں دل دغا بازی میں ہو تو بھلا ایسے سجدوں سے کیسے خدا راضی ہو۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اے اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دیں، اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے تو یقین مانیے تو آپ کبھی گن نہیں سکتے۔ کم رشتے بنائیے لیکن مخلصی سے نبھائیے، کیونکہ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ زندگی میں ان 2 لوگوں پر کبھی تبصرہ نہ کرو، جن کو تم چن لو اور جن کو تم چھوڑ دو۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار بنتا ہے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردے ہوتے تھے، اور تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسے ہوتے تھے۔ پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ
थामना चाहता है। गीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। बुराई की तरफ नफ्स दौड़कर जाती है, जबकि नेकी की तरफ उसे घिसट कर लाना पड़ता है। इस दुनिया में माँ बाप की रोक टोक भी एक नेमत है, वरना औलाद जगह जगह पर जलील और रुस्वा नजर आए। जिस घर में दीन और नेक माल हो, वो घर तहजीब और इंसानियत का बेहतरीन नुमाइंदा होता है। मांगने वाले की लोग मदद तो करते हैं, मगर पसंद नहीं करते, क्योंकि पसंदीदगी हमेशा खुददारी को मिलती है। जब आपका ज़मीर मलामत करना छोड़ दे तो समझ लो कि अब इंसानियत आप में ख़त्म हो चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सलामत रहना चाहे वो अपनी ज़बान को महफूज रखे। जो वक्त गुज़र गया उसको याद करके कुछ असूल बना लें, तो जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतर हो जाएगा। इस दुनिया में अक्ल वाला अपने काम पर और वहीं जाहिल अपनी उम्मीदों पर भरोसा करता है। जब दुनिया तुम्हें घुटनों के बल गिरा दे तो समझ लो कि ये दुआ मांगने का बेहतरीन वक्त है। कभी तन्हाई महसूस ना करिए, क्योंकि पूरी कायनात आपके अंदर मौजूद है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपनी औलादों को अच्छे इखलाक सिखाओ। जितने सजदे जवानी में करना है कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में अक्सर लोगों को बिना सजदे के नमाज पढ़ते देखा है। जब बोल ना पाओ तो रब के आगे रो लिया करो, क्योंकि वो सब जानता है। ज़िंदगी कभी कभी ऐसी ठोकर मारती है कि इंसान सीधा सजदे में जा गिरता है। इस दुनिया में किसी की पहचान इल्म से नहीं होती, बल्कि आदाब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन वो आदाब से महरूम था। जिस्म के दो आज़ा हैं, और जब ये सुन होने लगे तो समझ जाओ कि मौत करीब है। हम इस जहां में एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, तस्लीम नहीं। इस दुनिया में बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे दिल नहीं रखते। खामोश रहो, क्योंकि सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। हुजूम में तन्हाई बरकरार रखने वाला शख्स ही एक मजबूत ज़िंदगी का मालिक है। इस दुनिया में अच्छे तो सभी होते हैं, बस उनकी पहचान बुरे वक्त में होती है। हर किसी को अच्छा समझ लेना ही इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। हम जिंदा बंदे को रोटी तो नहीं देते, पर मरे हुए के नाम पर देगे लौटा देते हैं। इस दुनिया में अच्छाई को फैलाना पड़ता है, और वहीं बुराई खुद ही फैल जाती है। इंसान चांद पर पहुंच गया है, समंदर की तह तक पहुंच गया है, लेकिन अफसोस इंसान इंसानियत तक नहीं पहुंच सका। आजकल के लोग आग माचिस से नहीं, बल्कि अपनी ज़बानों से लगाते हैं। दूसरों की खामियां छोड़ दो और कभी खुद को भी आईने में देखो। रिश्तों को मजबूत रखने का दरवाज़ा, जब आप गलत हो तो अपनी गलती को तस्लीम करिए, और जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करिए। इस दुनिया में दुश्मन से भी ज़्यादा ख़तरनाक वो है जो दोस्त बनकर आपको धोखा दें। मुनाफिक लोगों की पहचान, ये आपकी खुशियों में सबसे आगे और आपकी मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। अपनी इस्लाह करते रहना और ख़ुद को मुसलसल बेहतर बनाना ही असल कामयाबी होती है। अगर आप सच बोलते हैं तो फिर कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंसान ने महसूस करना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसे उन चीज़ों से मोहब्बत हो गई है जिनमें एहसास नहीं है। फासले बढ़ते हैं तो
गलत फहमियाँ भी बढ़ जाती हैं और फिर वो भी सुनाई देता है जो कहा भी ना हो। कभी कभी अच्छा लगता है कि सब जानकर भी अनजान बनना, बिल्कुल चुप रहकर सामने वाले की चालाकियाँ देखना कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहाँ तक जा सकता है। अगर तनकीद ही करना है तो नरम लहजे से करिए, क्योंकि नरम लहजे से ज़मीर जागता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। इस दुनिया में अगर इत्मीनान पैसे में होता तो सुकून कभी सजदे में ना होता। अपने दिल को तब तक टूटने दो जब तक कि ये खिल नहीं जाता। जब लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी असल औकात है। जाहिलों पर हुक्मरानी चाहते हो तो उन्हें मज़हब का गिलाफ उड़ा दो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी कुव्वत है जो तुम्हें ज़िंदगी से लड़ना सिखाती है। तुम जो देते हो वो तुम नहीं देते, बल्कि तुम्हें तो देने की तौफीक भी तुम्हें देने वाला देता है। जुदाई का एक लम्हा भी आशिक के नज़दीक एक साल के बराबर है। मौलाना रूमी कहते हैं, अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। सब्र ईमान की बुनियाद है, इखलाक इंसान की खूबसूरती है, सच्चाई कुरान की ज़बान है, आजिज़ी कामयाबी की कुंजी है और दुआ मोमिन का हथियार है। मौलाना रूमी कहते हैं कि जो खूबसूरती तुम मुझ में देखते हो वो दरअसल तुम्हारा ही अक्स है। इखलाक कभी नहीं हारता और तकब्बुर कभी जीत नहीं सकता। माफ़ी से बढ़कर कोई अच्छा अमल नहीं होता, इसलिए तुम लोगों को माफ़ करो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए। सबसे जलील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा हो। ए इब्ने आदम, याद रखो कि तुझे आराम के लिए नहीं बल्कि इम्तिहान के लिए भेजा गया है। ज़मीन इंतकाल के बाद बंदे की होती है और बंदा इंतकाल के बाद ज़मीन का हो जाता है। अगर मौत के बाद अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो मौत से पहले अपने रब की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार लो। इस दुनिया में जो तुमसे ताल्लुक़ पसंद ही ना करता हो उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करो। दुनिया के लिए यही ऐब काफ़ी है कि इसमें वफ़ा नहीं। शादीशुदा औरत पर तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का होता है और मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का होता है। इस दुनिया में इब्लीस के पास गुस्से और औरत से ज़्यादा ताकतवर कोई लश्कर नहीं। जब अपने कामों में तंगी महसूस होने लगे तो कसरत से अल्लाह से माफ़ी मांगो। खबरदार हसद से बचे रहो, क्योंकि हसद ने ही काबिल को अपने भाई हाबिल के कत्ल पर उभारा था। खुदा को धोखा देकर जन्नत नहीं खरीदी जा सकती और खुदा की अताअत के बगैर खुदा की रज़ामंदी हासिल नहीं की जा सकती। इस दुनिया में जिसने अपनी माँ के पैर चूमे गोया उसने जन्नत की चौखट का बोसा दिया। ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं, इसलिए जिस कदर मुमकिन हो दूसरों के काम आओ। वो करीब है क्योंकि वो किसी रुकावट के बगैर अपने बंदे की दुआओं को सुनता और पूरा करता है। 3 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़बान और नरम दिल। दिलों को जीतने का फ़न सीखिए, ना कि दिलों से खेलने का। इस दुनिया में समझदार लोग बहस नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि बहस करने से सिवाय आपस में रंजो गम पैदा होगा। इल्म अल्लाह का नूर है और अल्लाह ताला का नूर गुनाहगार को दिया नहीं जा सकता।
इस दुनिया में जो होश में है वो कभी तकब्बुर नहीं करता। दुनिया को जितना करीब करोगे उतना ही अपने नफ्स के फरेब में मुब्तला हो जाओगे। मौलाना रूमी कहते हैं, इस कायनात में जो कुछ है वो तुम्हारे अंदर भी मौजूद है, इसलिए अपने आप को हासिल करो। नफ्स को उकसाने का अमल आंखों से शुरू होता है। आदमी के झूठा होने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेता है। इस दुनिया में असल सदका ये है कि तुम उसको माफ़ कर दो जिसको माफ़ करना मुश्किल है। फ़कीरी ये है कि आप ज़मीन के ऊपर का किरदार और ज़मीन के अंदर जाने के बाद का किरदार बराबर कर दें। इस दुनिया में जो ऊंचे मकाम पर होता है उनके कांधों पर आजमाइशें भी बड़ी होती हैं। एक शख्स ने किसी बुज़ुर्ग से पूछा कि कुरान में तो आने वाले वक्त का कोई ज़िक्र नहीं है, तो उन बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि गौर फ़िक्र करने वालों के लिए हर चीज़ का ज़िक्र है और अल्लाह उनके लिए हर रात से पर्दा उठा देता है। इस्लाम के सुतूनों को अपनाए बगैर आप अल्लाह की राह में जद्दोजहद नहीं कर सकते। लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दें, क्योंकि इज़्ज़त और रिज़्क अल्लाह देता है, लोग नहीं। इस दुनिया में आप किसी से ना डरो सिवाय गुनाह के, और ना ही किसी से उम्मीद रखो सिवाय अपने अल्लाह के। हो सकता है कि दुनिया में मुनाफिक बाजी ले जाएं, मगर आखिरत सच्चे लोगों की कामयाबी का दिन है। इंसान की हिफाजत दरअसल उसकी मौत का मुकर्रर वक्त करता है। अगर तुम किसी के गुलाम बनना ही चाहते हो तो अपने अल्लाह के गुलाम बनो। पहले तो लोग समझते रहे कि वक्त बदल जाता है, फिर एक बार वक्त ने समझाया कि लोग बदल जाते हैं। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यहीं अगर दुनिया दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। जाहिलों का तरीका ये है कि जब उनकी दलील मुकाबले के आगे नहीं चलती तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आपका दिल पाक है तो ये दुनिया की किसी भी बुराई से मुतासिर नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई इंसान भी दुख उठाए बगैर सुख की कदर नहीं कर सकता। जो आंसू हम बहाते हैं वो हमारे दिलों के बागात को पानी देते हैं। जो बीज अपने छिलकों को उतार ना दें वो कभी भी फलदार दरख्त नहीं बन सकते। इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी को दिल की बात कहकर फिर उससे कहा जाए कि किसी को ना कहना। इस दुनिया में जो वाकई इंसान होता है वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। मुकद्दस और पाक मकाम में दाखिल होने का रास्ता आपके अंदर है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उसको पाकीज़ा लोगों की ऐबजोई में मशगूल कर देता है। अजीम इंसान भी मरता है, लेकिन मौत उनकी अज़मत में मज़ीद इजाफे का बाइस बनती है। हज़रत अली ने फरमाया कि जितना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हें उतना ज़्यादा अता करेगा। गरीबों के साथ बैठा करो ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। मौलाना रूमी कहते हैं, हकीकी सुकून सिर्फ उस वक्त मिलता है जब आप तन्हाई में अपने खुदा से लो लगाते हो। इंसान को अपने ऐबों पर नज़र रखनी चाहिए, वरना उसकी नेकियों की नज़र बदल जाएगी। मौलाना रूमी कहते हैं, तकदीर के लिखे से छुटकारा हासिल करने का रास्ता फ़कत आजिज़ी है। इस दुनिया में सच्चे आशिक अपने दिल के दर्द से साबित होते हैं, क्योंकि दिल की बीमारी जैसी कोई बीमारी नहीं होती। वक्त अच्छा हो या बुरा हो गुज़र ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं।
अपनी ज़िंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहें। पहला मसरूफ़ और दूसरा मगरूर, क्योंकि मसरूफ़ लोग अपनी मर्ज़ी से बात करेंगे और वहीं मगरूर लोग अपने मतलब से ही आपको याद करेंगे।